اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر ریاست تلنگانہ کے مشہور شہر حیدرآباد سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، حیدرآباد کی ایک مسجد میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جس کے بعد پورے علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے اور ملزم کی شناخت جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے علاقے قسمت پور، جسے راجندر نگر بھی کہا جاتا ہے، قسمت پور میں بدھ کی رات یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، مسجد میں توڑ پھوڑ کا، جس کے بعد صورتحال بالکل کشیدہ ہو گئی جب ایک نامعلوم شخص نے وہاں پر مسجد بلال میں گھس کر مذہبی مواد کی، یعنی قرآن مقدس وغیرہ کی بے حرمتی کی۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ رات تقریباً 11:30 بجے پیش آیا، جب ایک شخص نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس مسجد میں جوتوں سمیت داخل ہوا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چند لمحوں بعد کچھ کتابیں ہاتھ میں لے کر باہر بھی نکلا۔ خیر، اس معاملے کی انکوائری بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ گھسنے والوں نے جان بوجھ کر مذہبی مواد کو نقصان پہنچایا ہے۔ مسجد کی انتظامیہ نے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ دار افراد کو فوری گرفتار کیا جائے۔ خیر، حیدرآباد سے یہ یاد آتا ہے کہ یہ وہی حیدرآباد ہے جہاں کئی غریبوں کے گھر توڑ دیے گئے، دکانیں مکان توڑ دی گئی، مسجدوں پر یوں سمجھیے کہ بلڈوزر چلا دیے گئے، مسجدوں کے واقعات ہیں، کئی بے قصور مسلم نوجوانوں کا انکاؤنٹر کر دیا گیا، اور یہ وہی حیدرآباد ہے جہاں سے ایک شخص یہ ظاہر کرتا ہے، خود ساختہ اپنے آپ کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا لیڈر بتاتا ہے، لیکن اسی شخص کے شہر کا یہ حال ہے کہ یہاں مسلمانوں کی مسجدوں میں توڑ پھوڑ بھی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو جیل کے سلاخوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہا ہے، اور ان کے گھروں اور مکانوں پر بھی بلڈوزر چل رہا ہے۔ اور وہاں ان کے ساتھ ایم ایل اے ہیں، ساتھ، اور یہ خود وہاں پر ایم پی یعنی ممبر پارلیمنٹ ہے، پورے ہندوستان میں جا کر یہ تقریریں کرتے ہیں مسلمانوں پر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے شہر کا خود یہ حال ہے۔ اس لیے باہر کے اندھ بھکتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے شہر میں جب مسلمانوں کے یہ حالات ہیں، تو اگر آپ کے یو پی میں، مہاراشٹر میں، گجرات میں یا بہار میں، بنگال میں اگر کچھ ہوتا ہے تو حضرت حیدرآباد سے کب آئیں گے؟ جب حیدرآباد میں کچھ نہیں کر پا رہے تو آپ کا کیا کر پائیں گے؟ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اسمبلی انتخابات کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ ووٹوں کی گنتی کے جو سینٹرز ہے، مراکز ہے، ان پر حفاظتی انتظامات سخت کیے جا رہے ہیں۔ QR کوڈ شناختی نظام نافذ کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ووٹوں کی گنتی مراکز پر QR کوڈ پر مبنی فوٹو شناختی نظام نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمیشن کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ نظام غیر مجاز داخلے کو روکنے اور گنتی کے عمل کو منظم بنانے کے لیے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نظام 4 مئی 2026 کو ہونے والی ووٹوں کی گنتی سے ہی نافذ کر دیا جائے گا۔ ہم الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ آپ کتنے بھی نظام بنائیے پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے، ارے جب آپ کا الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر اگر سیٹنگ باز ہو تو پھر الیکشن شفاف اور پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش سے خبر ہے کہ گائے کا گوشت
साबित होने तक गाड़ी को जब्त करना ये गैर कानूनी और मनमानी है। यूपी हुकूमत पर अदालत ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एक्चुअली मध्य प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है कि झूठे गौरक्षक जो अपनी सगी माँ को एक गिलास पानी नहीं पिलाते, गौरक्षा और गौ माता के नाम पर रास्तों पर खड़े रह के आतंकवाद का नंगा नाच करते हैं, मनमानी करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ की पुलिस बिल्कुल लाचार और मजबूर हो गई है। जी हाँ, या चूड़ियाँ पहन ली है जो इन लोगों को यहाँ पर रास्तों पर उतारा गया है। ये गैर कानूनी तरीके से ड्राइवरों को मारते हैं, गाड़ी को तोड़फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं और कहते हैं कि भाई गाय का गोश्त था, लेकिन और गाय के गोश्त साबित होने तक के गाड़ियां जब्त की जाती है। लेकिन अभी यूपी हुकूमत पर अदालत ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कोर्ट ने यह कहा कि गाय का गोश्त साबित होने तक गाड़ी जब्त करना यह गैर कानूनी और मनमानी है। तो ये झूठे गौरक्षकों पर बाकायदा अगर गाय का गोश्त नहीं मिला तो इन झूठे गौरक्षकों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर यह मामला कहीं ना कहीं रुकेगा। वरना गौ रक्षा के नाम पर बाकायदा आतंकवाद का नंगा नाच और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर, मैं भी गया हूं, वहां पर एक बड़ा डैम है। अब वहां से खबर आ रही है कि उस डैम में बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बरगी डैम में, बुर्गी है या बरगी डैम कहते हैं उसे, उस डैम में एक क्रूज जहाज उलट गया। जहाज उलट गया, 30 से ज्यादा अफराद उसमें सवार थे और अब तक बताया जा रहा है कि 4 लोगों के हलाक होने की खबरें आ रही है। नाज़रीन, रियासत उत्तर प्रदेश के हालात ये सामने आ रहे हैं कि आंधी और बारिश का कहर उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त रहा और ये मामला इतना खतरनाक रहा कि 18 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हवा, आंधी, तूफान इतना तेज था कि दरख्त उखड़ गए और बिजली के गिरने के वाकयात भी आए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे टोल की छत उड़ने की खबर भी आ रही है। मौसम में अचानक हुई तब्दीली ने जहां मुल्क के कई हिस्सों में शदीद गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी है, वहीं यूपी के लिए यह मौसम तबाही लेकर आया। रियासत उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और बारिश के सबब कई इलाकों में जानी और बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। दीवारों के गिरने, दरख्तों के उखड़ने और बिजली के गिरने के भी मुख्तलिफ वाकयात में 18 लोगों की मौत की खबरें भी आ रही है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी वजीर आजम के हाथ से एक गंगा एक्सप्रेस वे टोल का इफ्तिताह हुआ, लेकिन ये इफ्तिताह और ये एक्सप्रेस वे लोगों के लिए कोई फायदा साबित नहीं हो रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है तो ये लूट मार का एक जरिया साबित हो रहा है। बताया जा रहा है कि 905 रुपये से लेकर 1265 रुपये तक टैक्स अदा करना होगा। गंगा एक्सप्रेसवे का बुध के रोज यानी 29 अप्रैल को नरेंद्र मोदी के हाथों इफ्तिताह हुआ। इस एक्सप्रेस से मेरठ से प्रयागराज का सफर अब महंगा होने वाला है। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर कार वालों को एक तरफ का मुकम्मल सफर करने के लिए 1800 रुपये टोल टैक्स अदा करने होंगे। सिर्फ टोल टैक्स 1800 रुपये 500 किलोमीटर में। इससे गाड़ी मालिकान की जेब पर काफी असर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गंगा एक्सप्रेस के लिए टोल की शरहें जारी कर दी है। ये शरहें गाड़ियों के अक़साम के मुताबिक तय की गई है। मुकम्मल 594 किलोमीटर का सफर तय करने पर 2 पहिया 3 पहिया गाड़ियों और रजिस्टर्ड ट्रैक्टर ड्राइवरों को 905 रुपये टोल देने होंगे। कार, जीप, वैन और हल्की गाड़ियों को 1800 रुपये टोल देना होगा, जबकि हल्की कमर्शियल और माल बरदार गाड़ियों को 2840 रुपये अदा करने होंगे। अगर बस और ट्रक की बात करें तो उन्हें 5270 रुपये टोल के अदा करने होंगे। अब भारतीय तामीराती मशीनरी, मिट्टी हटाने वाली गाड़ी और मल्टी एक्सल गाड़ियों यानी MAV को 8760 रुपये टोल अदा के देने पड़ेंगे।
जबकि मशीनी आलात और मल्टी एक्सल गाड़ियों और 7 या उससे ज्यादा एक्सल वाली बड़ी गाड़ियों के लिए 11,265 रुपए तय किए गए हैं। ताली बजा दीजिए एक बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए, ताली बजा दीजिए। ये एक्सप्रेसवे बनाकर जुल्म किया है या लोगों के लिए सहूलत पेश की है? अब आप खुद ही कमेंट में मुझे बताएं। आइए नाज़रीन, बिहार से बड़ी बुरी खबर आ रही है। जी हाँ, बिहार में अभी तक के बीजेपी का वजीर आला नहीं बना था, अब बन गया है तो फिर घटिया चाले तो करेगा ही करेगा। तो अब खबर आ रही है कि बिहार में नीतीश कुमार के हटते ही बीजेपी का वजीर आला बना और उसने अपनी घटिया हरकत शुरू कर दिया। और खबरें आ रही है कि नाम बदलने का खेल अब उत्तर प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर अब बिहार में भी पहुंच गया है और बिहार में भी नाम बदलने का खेल शुरू हो गया है। चिड़ियाघर और डेयरी इंस्टीट्यूट से संजय गांधी का नाम हटा दिया गया। हो सकता है इसके बाप का नाम लगा दिया जाएगा। दीगर बीजेपी हुक्मरान और रियासतों की तरह अब बिहार में भी नाम बदलने का खेल शुरू हो गया है। आइए नाज़रीन, मुंबई के मुंब्रा से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुंब्रा में दाऊदी बोहरा जमात के ज़ेर एहतमाम 3 मई को टैलेंट हंट एक्सपो का इनेकाद किया जाएगा। जी हाँ, नौजवान टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए 3 मई इतवार को मुंब्रा में टैलेंट हंट एक्सपो का इनेकाद किया जाएगा। मुंब्रा दाऊदी बोहरा जमात के ज़ेर एहतमाम ये तकरीब सुबह 9:30 बजे आनंद कोलीवाड़ा में वाक़े बुरहानी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में शुरू होगी। बताया जा रहा है कि इस तकरीब का बुनियादी मकसद नौजवानों में बाकायदा उनके टैलेंट, उनकी हौसला अफजाई, उनकी तख्लीकी सलाहियतों और खुद एतमादी कॉन्फिडेंस को फ़रोग देना है। मुंतज़मीन के मुताबिक एक्सपो में आने वालों के लिए खाने के स्टॉल्स, दिलचस्प गेम्स और तफरीह समेत खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। शुराका के लिए पुरकशिश इनामात भी पेश किए गए हैं। मुंतज़मीन ने शहरियों से अपील की है कि वो नौजवान टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शामिल हों और इस मुनफरिद इवेंट का हिस्सा बने। खैर, आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि ये दाऊदी बोहरा जमात ये वो जमात है और ये वो समाज है जो बिजनेस करता है और बिल्कुल यूँ समझिए कि हलाल रिस्क की पूरी ताकत के साथ मेहनत करता है। और इस बिरादरी की एक खास बात यह है कि कभी भी ये बिरादरी या इस बिरादरी का कोई फर्द या मर्द हो या औरत कभी भी आपको रोड पर मजबूरी, बेकसी और फकीरी और मोहताजी और हाथ फैलाने के अंदाज में, भीख मांगने के अंदाज में कभी आपको नजर नहीं आएंगे। ये इस कौम की, इस समाज की खासियत है। खैर, ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया है कि अपनी जमात के जवानों को ख़ास तौर से उनके टैलेंट को, उनकी हौसला अफजाई करके उनके एतमाद, उनके कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाया जाए। तो ये प्रोग्राम 3 मई को होने जा रहा है। नाज़रीन, बाबा बागेश्वर, जी हाँ, आप जानते हैं चिट्ठी उठाता है तो इस चिट्ठी उठाने वाले बाबा ने काफ़ी काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए और आरएसएस का यूँ समझिए कि पालतू है। बीच में आरएसएस की तारीफ भी ऐसे किया कि हिंदुओं को मशवरा दे रहा है कि बच्चे 3-4 पैदा करो और एक तो कम से कम आरएसएस के लिए दे दो। जी हाँ, ये वही आरएसएस के लिए बच्चों की भीख मांग रहा है क्योंकि ये आरएसएस वाले बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, शादियाँ नहीं करते हैं, इनको बच्चे दूसरों के चाहिए। और ये वही आरएसएस है जिसने मुल्क के लिए कभी भी कोई खिदमत अंजाम नहीं दी। आज़ादी के वक्त में भी ये अंग्रेज़ों के दलाल, वादा माफ गवाह, मुखबिर रहे हैं। स्वतंत्र सेनानियों को इन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए उस वक्त भी काम किया था और आज ये आरएसएस की कठपुतली सरकार बीजेपी की पूरे मुल्क पर राज कर रही है और ये बाबा बागेश्वर उसी कठपुतली का एक हिस्सा है। खैर, इसने शिवाजी महाराज की तौहीन की। महाराष्ट्र में इसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज आंदोलन हो रहे हैं, इसको जूते चप्पल भी मारे जा रहे हैं। तो अब कांग्रेस ने भी शिवाजी महाराज की तौहीन और अपमान पर कांग्रेस ने भी जोरदार अंदाज में एहतजाज किया और बाबा बागेश्वर के किरदार के साथ साथ हुकूमत के किरदार पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि हुकूमत ही बाबा बागेश्वर को आगे बढ़ाती है, उसको शो अप करती है, उसके प्रोग्राम्स करवाती है और उसको सिक्योरिटी देती है, क्योंकि हुकूमत का ये एक पालतू है।
اور शिवाजी महाराज के अपमान करने पर हुकूमत खामोश है, इसलिए कांग्रेस ने हुकूमत के यानी बीजेपी के किरदार पर भी संगीन सवालात उठाए हैं। आखिरी बड़ी खबर, जी हाँ, भारत वासियों के लिए इंतहाई चिंताजनक खबर है। खबर ये आ रही है कि दुनिया के 100 गर्म तरीन शहरों में, आप ताज्जुब करेंगे, 95 शहर भारत के बताए गए हैं। यानी ताजा आलमी फहरिस्त सामने आई है, इंटरनेशनल लेवल पर एक लिस्ट सामने आई है कि दुनिया में 100 गर्म तरीन शहर है और उन 100 में से 95 शहर भारत के बताए गए हैं। यानी हिंदुस्तान को हेट व्यू का मरकज करार दे दिया गया है। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिलमस से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।